Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine. So, children, welcome to the classroom. As we all are doing the revisions, हम सभी कोई revisions कर रहे हैं. And I can say in this week, I am doing the revisions of the chapter first. Chapter first का मैं revision कर रही हूँ आप सभी के साथ. So many things I have discussed with you, and today I am going to discuss with you. I will move forward toward the topic like the last in the yesterday video. I discussed with you the triarchic theory. So today I am going to discuss with you the past model of intelligence. So let's children learn with me and revise with me. Past model. Past model of intelligence. I hope it is visible to you all. It is PASS. I am going to write it over here also, so there will be no confusion to you all. Past. All has their name. Like every word denotes something. Okay, like P for planning, A for attention or arousal, or S for simultaneous, and another S for successive. So I am going to write it over here. P for planning, A for attention or arousal, S for simultaneous, and another S for successive. Simultaneous processing, successive processing. Okay, so these 4 points are there. P for planning, A for arousal and attention. Please make it like this one also, so it will make you to score good marks. P for planning, A for attention and arousal, S for simultaneous processing, and another S for successive processing. Fine? Okay. So children, past model. This is a model which is also related to the theory of intelligence. पास्ट मॉडल भी एक इंटेलिजेंस की ही थ्योरी है, जस्ट लाइक गार्डनर थ्योरी एंड स्टर्नबर्ग थ्योरी. दिस इज ऑल्सो अ थ्योरी एंड विच इज कैन बी नेम्ड एज अ थ्योरी ऑल्सो, और इट कैन बी नेम्ड एज अ मॉडल ऑल्सो. ये थ्योरी भी आप इसे बोल सकते हो, आप इसे मॉडल भी बोल सकते हो. ओके फाइन, ठीक है. सो इन दिस मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज who has given this model. So this is a model which is given by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. I think it is not out of the box, and you all, it is visible to you all. J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. Please note it down these names. J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. They had given this model, past model. Okay, and they also talk about the intelligence. They said that those who are intelligent, जो intelligent होते हैं, they do anything systematically and they move from one stage to another. So these are the description of these stages. इसी को ही पास्ट मॉडल का नाम दिया गया. सो बट इट इज नॉट इन ऑर्डर. सबसे पहले क्या आता है, द ऑर्डर इज दिस वन. अटेंशन एंड अराउजल इज फर्स्ट, देन प्रोसेसिंग इज द सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज द प्लानिंग. ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज परफॉर्मेंस.
सो ये 3 स्टेजेस में होते हैं. हम इन 3 स्टेजेस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू रब इट. आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे या अपने माइंड में इसे स्टोर जरूर किया होगा. सबसे पहला आता है द फर्स्ट पॉइंट केम द arousal. Arousal or attention. A denote for arousal also and A denote for attention also. A denote for arousal also and A denote for attention also. So according to the J.P. Das, Jack Nalari and Kirby, उनके अनुसार जो इंटेलिजेंट होते हैं वो सबसे पहले किसी भी काम को उन्हें करना है तो दे आर वेरी हाईली अराउज्ड, दे आर अटेंटिव. हियर द J.P. Das said that for attention arousal is the key factor. For attention arousal is the key factor. Arousal, not only arousal, mental preparedness, it is also the factor. अटेंशन के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका अटेंशन किसी चीज़ पे बना रहे तो आपका अराउज्ड होना बहुत ज़रूरी है. अराउजल इज समथिंग अ फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रेसर इज स्टैंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एट दैट पॉइंट दैट रेसर that participant who is participating in a 100-meter race, तो जो पार्टिसिपेंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं वो लोग हाईली अराउज्ड होते हैं. हाईली अराउज्ड होते हैं तभी दे गिव अटेंशन टू द गन शॉट ऑफ द एड्रेसर, जो एड्रेस कर रहा है या जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस रेस को. तो जैसे ही गन शॉट होती है दे आर अबाउट टू रन. तो अगर आप अराउज्ड नहीं होंगे तो आप अटेंटिव नहीं होंगे. यू आर अनएबल टू अटेंड द स्टिमुलाई. आप वहीं पे खड़े रह जाएंगे. फिर इफ योर माइंड इज नॉट अराउज्ड एंड इफ योर माइंड इज समवेयर एल्स, सो बोथ आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द पास मॉडल. पास मॉडल एंड J.P. Das कहे कि फॉर गिविंग एन अटेंशन टू एनीथिंग अराउजल इज द की फैक्टर. सो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो हाईली अराउज्ड होते हैं, अटेंटिव होते हैं और दे परफॉर्म वेरी वेल. वन मोर थिंग, इन 3 पॉइंट्स तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पास PASS, दिस J.P. Das called that they are the इंटेलिजेंस को उन्होंने डिफाइन किया. लाइक एवरीबडी हैज गिवन देयर डेफिनेशन. गार्डनर हैज गिवन हिज ओन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. Sternberg has given his own definition of intelligence. If we discuss about it, like for example, Gardner has given the definition that multiple intelligence exists in the person. Multiple intelligence exists in the person, and these intelligence are interdependent on each other. This is the meaning of intelligence according to the Gardner. Now according to the Sternberg, intelligence क्या है? Intelligent people not only adapt to the environment but also shape and modify it according to one's own need. This is the definition which is given by the Sternberg. Similarly, J.P. Das, Jack Nalari and Kirby has also given their own definition of intelligence, and they said that intelligence is the interdependent functioning of these 3 neurological systems. J.P. Das ने इन 3 सिस्टम्स को न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कहा. अराउजल, प्रोसेसिंग, प्लानिंग. और इन्होंने कहा कि ये तीनों ही इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग. तो उन्होंने कहा इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ दीज 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. इंटेलिजेंस क्या है? ये इन्हीं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का फंक्शनिंग है. यानी जो पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं वो ये 3 स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं. दे फॉलो दीज 3 स्टेप. सो जस्ट राइट इट डाउन ऑल्सो समवेयर. I am dictating it that according to the J.P. Das, intelligence is the interdependent functioning of 3 neurological systems. These 3 neurological systems are arousal or attention,
processing and planning. Okay. ओके, तो हम लोग को वन बाई वन इनको डिस्कस करना है. सबसे पहले है द फर्स्ट वन इज अराउजल एंड अटेंशन. आई डिस्कस विद यू व्हाट इज द रोल ऑफ अराउजल एंड अटेंशन एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अराउजल एंड अटेंशन. ओके, क्योंकि इट इज द फर्स्ट स्टेप. व्हेन यू आर अराउज्ड देन यू गिव अटेंशन, एंड व्हेन यू गिव अटेंशन देन यू डू द प्रोसेसिंग. आफ्टर द अराउजल और अटेंशन द सेकेंड स्टेप इज प्रोसेसिंग. And this processing we do in a two manner. Processing. First is simultaneous. Another is successive. Simultaneous and successive. Two kind of processing were there. Simultaneous and successive. You have to understand, children, what is the meaning of simultaneous processing and what is the meaning of successive processing. ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि from this so many questions were asked. बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. So processing simultaneous और successive दो तरीके की होती है. There are two kinds. Simultaneous processing function is different from the successive processing. Simultaneous processing का जो function होता है बहुत differ होता है in comparison to the successive, and sometime in your exam it can be asked separately also, like defines or explain simultaneous processing, or maybe it came like what is the difference, but now it is coming as an objective. So maybe some kind of questions were framed and asked to you either it is a simultaneous processing or either it is a successive processing. Fine. So see, the question कैसे भी आ रहे हो, either the questions are coming objective or either the questions are coming subjective. The main important is your concept should be clear. अगर आपका concept clear हो रहा, आपके mind में वो store हो रहा, तो you can solve either it is subjective or either it is objective. तो concept clear होना चाहिए. So you should know about what is simultaneous processing and what is successive. Simultaneous नाम से थोड़ा पता चल रहा होगा, कोई भी चीज़ साथ में. तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें हम लोग एसोसिएशन करते हैं. इट इज़ समथिंग इंटीग्रेटिंग समथिंग एंड गिविंग इट टू अ मीनिंग. बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक मीनिंग देना, दैट इज़ अ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग. जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड गेम खेला है, बहुत सारे कुछ लेटर्स को आपको दिए जाते हैं, उन लेटर्स को आप मिला के कुछ वर्ड्स बनाते हो. मीन्स कुछ ऐसे स्टिमुलस जिनको हम इंटीग्रेट करके उसे एक मीनिंगफुल पैटर्न देते हैं. So if we are doing such kind of thing, so we are doing simultaneous processing. Okay, हम अपने learned material जो हमने याद किए हुए हैं उनको भी हम अपने mind में रखते हैं, learned material. Fine. तो simultaneous processing. Successive processing नाम से पता चल रहा होगा, successive यानी one by one. Recall of one leads to the recall of another. The best example of this successive processing is like multiplication table, counting, ABCD, 1 2 3. ये सारे successive processing से होते हैं. मतलब एक के बाद जो आ रहा है, serial processing is somewhere known as successive. जिसमें एक के रिकॉल से, जैसे बच्चे को हम पढ़ाते हैं A, B, C. अगर हम A बोलते हैं तो बच्चा B बोल देता है, B बोलते हैं तो वो C बोल देता है. तो one stimulus will be the recall of the another stimulus. So I hope it is clear to you the two kind of processing, simultaneous processing and successive processing. Fine. So first step is arousal or attention. Second is simultaneous and successive processing. After doing the processing, the third part is we do the planning. क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग करते हैं. अब हम लोग आफ्टर गिविंग द अटेंशन, फॉर अटेंशन वी हैव टू बी अराउज्ड एंड देन वी डू द प्रोसेसिंग. वी कैन डू द प्रोसेसिंग इन द टू मैनर, either we do it simultaneously or either we do it successively. After doing the processing, we plan how we have to execute the thing, how we have to perform the thing. Fine. So these are the three things.
in the past model of intelligence. So these are some important points related to the past, that who has given it and what is the full form of PASS, and what does it mean of what is the processing, what is the proper step which follow in this kind of intelligence, and what JP Das define intelligence, that intelligence is the interdependent functioning of three neurological systems, and these three neurological systems. सो आई थिंक पास मॉडल भी क्लियर हो गया और आप सभी को, तो जल्दी जल्दी दूसरे कुछ टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिविजन्स हो रहे हैं तो। हियर वी हैव कंप्लीटेड चिल्ड्रन द थ्योरीज, मैंने आप सभी से थ्योरीज कंप्लीट कर ली, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया, थ्योरीज कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा और दिस चैप्टर इज गिविंग यू द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटेलिजेंस के बारे में ये और आपको बताता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एंड वन मोर इज इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है। Interplay of nature and nurture, ठीक है, interplay of nature and nurture. Here the two terms, children, you will get it. One term is nature and another word is nurture. One word is nature and another word is nurture. What does it mean? इनकी मीनिंग क्या है, क्या है इनकी मीनिंग? नेचर को यूजली हम रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट से, हमारा नेचर क्या है, आज का नेचर, हमारे आसपास का नेचर क्या है। नर्चर को हम यूजली रिलेट करते हैं, जैसे नर्चरिंग वर्ड से रिलेट करते हैं, पालन पोषण करना, बड़ा करना। But here the somewhere the concept is totally, not totally but different. जैसे here the nature means heredity. Please note it in your mind. Some of the children, कुछ बच्चे हैं जिनको confusion है, कुछ बच्चे हैं जो समझदार है, ठीक है, वो समझदार कह सकते हैं, उन्होंने हार्डवर्क किया है तो they know about it, but there are some of the children who don't know. So please children, keep attention and keep focused. Nature means heredity. Nature का मतलब है यहाँ heredity, and nurture means environment. Environment यानी बच्चे का environment, बच्चे का आसपास का वातावरण कैसा है। So this is a topic which you have to discuss in this topic. What is the role of heredity and environment on intelligence of an individual? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है? इज देयर एनी काइंड ऑफ रिलेशन, है या नहीं है? या इट हैज़ अ रिलेशन। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रिलेशन नॉट ओनली इंटेलिजेंस से है बट ऑल्सो पर्सन के पर्सनालिटी से है, पर्सन के इंटरेस्ट से है, पर्सन के एप्टीट्यूड से है। एवरी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट डिटरमाइंड बाय दीज टू थिंग्स ओनली। See, if I say that human is like, वो जैसा भी है वो अपनी इसी दो कारण की वजह से है। This is the only two reason, पर्सन की हेरिडिटी और पर्सन का इन्वायरमेंट, यही दो चीज़ हैं जो पर्सन को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, ठीक है। दे आर द क्रिएटर ऑल्सो एंड दे आर द डिस्ट्रॉयर ऑल्सो, ठीक है। So let's study the relation of this one with the intelligence. Okay, intelligence से ये कैसे correlate कर रहा है या कैसे related है, fine. Nature nurture. पहले ही तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं अच्छे से। नेचर मीन्स हेरिडिटी एंड नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट। सेट इट इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए अच्छे से। बेसिकली इन टू
स्टडी करने के लिए, so children, in order to understand the nature and nurture, some of the studies have done. बेसिकली ये देखने के लिए नेचर का क्या इफेक्ट होता है इंटेलिजेंस पे और नर्चर, सम ऑफ द रिसर्च स्टडीज हैव डन. सो लेट अस स्टडी दोज रिसर्च स्टडीज. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द नेचर. नेचर हम लोग डिस्कस करेंगे. नेचर विच मीन्स हेरिडिटी. नेचर जिसका मतलब होता है हेरिडिटी. चलो, नेचर मीन्स हेरिडिटी. नेचर को स्टडी करने के लिए या ये देखने के लिए हाउ इट इज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, there were some of the studies have done. So 2 studies have done. The first is the twin study and second is the adoption study. The first is the twin study and second is the adoption study. 2 studies यहाँ पे डिस्कस हुए. ओके, ट्विन स्टडीज हुए थे और एडॉप्शन स्टडीज हुए थे. ट्विन स्टडीज में सो मेनी काइंड ऑफ ट्विन्स लिए गए थे. सो ट्विन स्टडीज से पहले मैं सिंपल टू डिफिकल्ट में चलूँगी. तो पहले मैं आपको एडॉप्शन स्टडी बता दूँ. एडॉप्शन स्टडीज में ये देखा गया कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट सम ऑफ द चाइल्ड बीन अडॉप्टेड बाय द सम पेरेंट्स. ठीक है, and when their behavior are observed and when their characteristics have shown, so ये देखा गया कि they are more similar to their biological parent rather than their adoptive parent. In order to see the influence of heredity on intelligence, ये adoption study की रही थी. जबकि होना ये चाहिए था मे बी कि जिन पेरेंट्स ने उस बच्चों को अडॉप्ट किया उनके वो ट्रेड्स लेने चाहिए थे या इन्वॉल्वमेंट का एफर्ट दिखना चाहिए था. बट हुआ क्या कि उनके जितने भी ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पर्सनालिटी, उनकी इंटेलिजेंस, यहाँ इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है तो हम लोग थोड़ा उसी पे फोकस हैं. तो उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा मैच कर रही थी इन कंपैरिजन टू देयर अडॉप्टिव पेरेंट. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल. ट्विन्स पे स्टडी जो की गई थी, एडॉप्शन पे बहुत शॉर्ट स्टडी यही है, और ट्विन्स पे जो स्टडी की गई थी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्विन्स को लिया गया. जैसे फर्स्ट कैटेगरी थी आइडेंटिकल. ओके, आइडेंटिकल ट्विन्स. सेकेंड फ्रैटर्नल ट्विन्स. थर्ड सिबलिंग्स. सिबलिंग्स पे भी हुआ. सिबलिंग्स मीन्स होते हैं ब्रदर सिस्टर, भाई बहन. और सॉरी इट इज विजिबल नाउ. आइडेंटिकल मतलब और फ्रैटर्नल ट्विन. आइडेंटिकल ट्विन्स थे और फ्रैटर्नल ट्विन्स थे. What is the difference between these two kind of twins? That you also should know. आपको मालूम होना चाहिए. See, identical twins ये दोनों ही होते हैं. Twins का मतलब ही यही होता है the baby or the child is born at the same time. एक ही समय पे उस बच्चे ने बर्थ लिया. ठीक है. आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल ट्विन्स का मतलब यही होता है कि दे बॉर्न एट द सेम टाइम. बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड फ्रैटर्नल? आइडेंटिकल चाइल्ड जो होते दे सिमिलरली लुक लाइक ईच अदर. वो एकदम एक दूसरे एक जैसे दिखते हैं. ठीक है, दे वेरी लुक अलाइक. एंड फ्रैटर्नल ट्विन्स होते हैं मे बी दे डू नॉट लुक लाइक ईच अदर बट दे बॉर्न एट द सेम टाइम, सो दे आर ट्विन. सो इन 3 कैटेगरीज पे स्टडी हुआ था इन ऑर्डर टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन इंटेलिजेंस. ठीक है, इंटेलिजेंस पे हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस देखने के लिए. आइडेंटिकल, पैटर्नल एंड सिबलिंग. नाउ इन सभी के कोरिलेशन
कोरिलेशन बहुत डिफर है, ठीक है, उसे भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब इट एंड आई एम गोइंग टू मेक अ चार्ट सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से चार्ट है ट्विंस। इन ट्विंस की रियरिंग डिपेंड करती है, रियर्ड अपार्ट एंड रियर्ड टुगेदर। Reared apart, one column will be of reared apart and another column will be of reared together. Reared की मीनिंग होती है, reared word is related to rearing यानी पालन पोषण। एक की rearing अलग अलग हुई और एक together। जैसे फर्स्ट हम लेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस थे, ठीक है, उनको अलग जब कर दिया गया, मतलब एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में उन्हें रख दिया गया, तो उनका जो एक साथ जब वो थे तो उनका कोरिलेशन 0.90 था, पर जब उन्हें अलग कर दिया गया तो उनका कोरिलेशन लेस हो गया, 0.70, कम हो गया। सिमिलरली फ्रैटर्नल ट्विंस जब साथ में थे तो उनका कोरिलेशन 0.70 था, बट अलग किया गया तो उनका कोरिलेशन 50 हो गया। सिबलिंग्स थे, थर्ड कैटेगरी सिबलिंग्स की थी। आई होप द बोर्ड इज विजिबल। अगर ये सिबलिंग भाई बहन जब साथ में थे, उनका कोरिलेशन अगर 0.50 था तो अलग होने पर उनका कोरिलेशन 0.25 हो गया। सो यू कैन सी द डिफरेंस चिल्ड्रन, कि जब वो साथ में रह रहे हैं तो उनका कोरिलेशन क्या आ रहा है और जब उन्हें अलग कर दिया जा रहा है तो उनका कोरिलेशन क्या आ रहा है। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस चार्ट, ये बता रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, या जब वे लोग साथ में रह रहे हैं तो हेरिडिटी का इफेक्ट दिख रहा है, उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है, बट अलग होने की वजह से, इन्वायरमेंट चेंज हो जाने की वजह से कोरिलेशन जो है वो डाउन हो जा रहा है। So this all study proved that heredity have an influence on the intelligence of an individual. Person की जो heredity होती है, उसकी जो कुछ चीज़ें पर्सन को इनहेरेंट होती हैं, बाय बर्थ उनको मिलती हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, सो दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सिमिलरली नाउ नेचर ने तो अपना काम किया, सिमिलरली नर्चर ऑल्सो टेल अबाउट and done his own work. So let's study about the nurture. I hope आपने इसे नोट डाउन किया होगा और ये आपको समझ में आया होगा। In case अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया after watching the video, you will definitely ask me in the classroom. But आप पूछोगे तो जब आप ये वीडियो देखोगे। आगे बढ़ते हैं नर्चर। नर्चर को स्टडी करते हैं। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट। ना इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है, इन्वायरमेंट ऑल्सो हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। टू प्रूव दिस वन देयर इज अनदर स्टडी हैव डन, ओके, just to prove that nature has also a role on the intelligence. Similarly nurture also has a role. Now it has been seen that environment ने अपना पार्ट कैसे किया। environment ये कहती है कि it has been seen that a child whose IQ, whose intelligence level is below average biologically, but if that child get a proper kind of environment, proper facility, proper schooling, everything, जो एक अच्छा इन्वायरमेंट, अगर वो बच्चा एक अच्छे नर्चर में रहता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है, तो इट हैज़ बीन प्रूवन दैट बिलो एवरेज चाइल्ड विल बिकम एन अबव एवरेज, एंड इट इज़ प्रूवन बाय द नर्चर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में दो तरीके के इन्वायरमेंट की बात होती है। फर्स्ट इज एनरिच्ड इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज इम्पावरिज्ड इन्वायरमेंट। एनरिच्ड एंड इम्पावर्ड। इनरिच्ड यानी इनरिचमेंट की बात हो रही है। इनरिच्ड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जहाँ सब चीज़ बच्चे को मिल रहा है, गुड स्कूलिंग, गुड एजुकेशन, गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर होम इन्वायरमेंट, और इम्पावरेज जहाँ इन सारी चीज़ों की लैक है। सो किस में बच्चा ज़्यादा डेवलप करेगा? नो डाउट इन एन इनरिच्ड इन्वायरमेंट।
सो बच्चा अगर बायोलॉजिकली वीक है, अगर उसे इनरिच्ड इन्वायरमेंट में मिल जाता है तो उसकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव हो जाती है. और इफ़ अ चाइल्ड इज बायोलॉजिकली वेरी इंटेलिजेंट बट अगर उसे एक इम्पावरिश्ड इन्वायरमेंट मिल जाता है तो टू सम एक्सटेंट उसकी इंटेलिजेंस कम भी होने लगती है. And at last, finally, we say that the interplay of nature and nurture. Finally, the researchers say that both play a very important role in the intelligence of an individual. दोनों का ही रोल होता है. It is not only the nature or nurture. Both combinedly joined effort will make a person's intelligence. So the two topics, children, I have discussed with you in today's video. I hope you understand it. Thank you so much for carefully listening and observing to me.